میں گھر میں اکیلی تھی، چارپائی پر لیٹی موبائل پر غلط فلمیں دیکھ دیکھ کر میری خود کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ چارپائی پر بچھی سفید چادر کافی حد تک میرے پانی سے گیلی ہو چکی تھی۔ اماں تو صبح سویرے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نکل جاتی تھی، پیچھے میں اکیلی گھر میں رہ جاتی۔ ہاتھ کی لذت کی وجہ سے میرے جسم میں عمر سے پہلے ہی واضح تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ میں شادی شدہ عورتوں کی طرح دکھنے لگی تھی، جیسے میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے فلمیں دیکھ دیکھ کر کافی کچھ سیکھ لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ پہلی رات ہر طریقہ اپنے شوہر پر آزماؤں گی۔ تب ہی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یہ دستک تو امی کی تھی، مگر دن کے 12 بجے ان کی واپسی کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور شام گئے ہی واپس لوٹتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے امی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر بڑی خوشی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، مبارک ہو، تمہاری لاٹری لگ گئی ہے۔ میں حیران ہوئی اور بولی، امی، ہم نے لاٹری خریدی ہی کب تھی؟ امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ وہ بولی، میری بات غور سے سنو، میں سیٹھ اکبر کے گھر کام کرتی ہوں نا، وہی جو کروڑ پتی ہیں، مگر ان کی جائیداد کا وارث نہیں، کوئی ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی دیوانہ۔ میں نے سارا ہلا دیا اور بولی، جی جی، مجھے علم ہے۔ امی کہنے لگی، اس دیوانے لڑکے کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، اس نے تجھ کو لینا چاہا، وہ اپنی دنیا میں مگن رہے گا، دن میں 1 گھنٹہ اس کی دلہن بننے کا ناٹک کر لیا کرنا۔ امی کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے ایک پاگل لڑکے کے ساتھ شادی کروں؟ میرے بھی کچھ سپنے ہیں۔ امی بولی، مجھے کچھ نہیں سننا، تمہاری شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی۔ اتنا کہہ کر امی اپنے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں تو اپنا سر ہی دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ویسے محبت کرتی تھی، میں تو کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ میری امی پیسے کی شیدائی ہیں۔ جب سے ابو کا انتقال ہوا ہے، ہم نے اتنی غربت دیکھی تھی کہ 2 وقت کے فاقے بھی کاٹے تھے، اس لیے اب امی کو پیسوں کی اہمیت کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے شروع سے یہ سمجھا رکھا تھا کہ وہ میری شادی کسی بہت امیر گھر میں کریں گی۔ اب تو کروڑ پتی لڑکے کا رشتہ آ گیا تھا میرے لیے، اب تو امی میری ایک بات بھی سننے کو نہیں تھی، پھر چاہے وہ لڑکا پاگل ہی کیوں نہ تھا، انہیں فقط پیسے سے مطلب تھا۔ میں نے امی کو بلیک میل کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے ان کے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر بند کر لیا۔ میں نے سوچا، امی کو جب علم ہوگا میں نے تو دروازہ بند کر لیا ہے تو وہ گھبرا جائیں گی، لیکن یہ بھی میری خام خیالی تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر امی نے پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ میں اب بور ہو چکی تھی، کیونکہ میرا موبائل بھی باہر چارپائی پر ہی پڑا رہ گیا تھا۔ اب میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور امی کی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تھی۔ امی کے کمرے میں ایک پرانا سا ٹرنک پڑا ہوا تھا، اس میں ابو کی تمام یادیں امی نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ ٹرنک کھول لیا کہ ابو کی تصویریں ہی دیکھ لوں۔ یوں ہی چیزیں دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھ ایک پوڑی لگ گئی تھی، اس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا تھا۔ میں چونک گئی تھی۔ میں نے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ عربی گھوڑے کی طاقت کی دوا۔ میرا دماغ ایک دم سے تیز تیز چلنے لگا تھا۔ امی مجھے اکثر بتایا کرتی تھی کہ ابو ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو پھر کیا اس محبت کے پیچھے بھی گھوڑے کی دوا والا ٹوٹکا ہی چھپا ہوا تھا؟ میں ابھی سوچ میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کہ امی کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی کہنے لگی، ثانیہ، دروازہ کھولو۔ میں نے وہ پڑیا ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے چھپا دی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ امی کمرے میں آئی تو کہنے لگی، تم نے یہ ٹرنک کیوں کھولا ہوا ہے؟ میں بولی، امی، مجھے ابو کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے ان کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے بتائیں نا، آپ کے ساتھ ابو کا رویہ کیسا تھا؟ اب میں اپنے اصل مقصد پر آئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا گھوڑے کی دوا والا ٹوٹکا سچا ہے یا نہیں۔ امی کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا، تمہارا باپ بہت اچھا مرد تھا، وہ مجھ پر جان چھڑکتا تھا، وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے میری ہر ضرورت پوری کی، مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا۔ احمد تو میری آنکھوں میں جہاں دیکھتا تھا میں کہہ دیتی تھی کہ دن ہے تو وہ مان لیتے کہ دن ہے، میں رات بولتی تو وہ دن کو بھی رات کہنے لگتے۔ میں بولی، امی، اس قدر محبت کی وجہ کیا تھی؟ میری بات سن کر امی ہنستی تھی۔ وہ بولی، میرے پاس ایک ٹوٹکا تھا، اس سے میرا شوہر میرا غلام بن گیا تھا، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تمہیں بھی وہ ٹوٹکا دوں گی۔ میں نے سارا ہلا دیا اور امی کے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی، امی، آپ نے میرے باپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، مگر میری قسمت میں باپ کی محبت نہ آئی۔
अब आप क्या चाहती हैं कि मैं शौहर की मोहब्बत को भी तरसती रहूं? खुदारा मेरे साथ इस कदर जुल्म मत करें। मुझे ज़िंदगी में कोई सच्ची खुशी तो महसूस कर लेने दें। अम्मी बोली, सानिया पैसे से बड़ी खुशी कोई नहीं। मैं बोली, पैसे के बगैर रह लूँगी। अम्मी मेरे तमाम दलाइल को रद्द कर रही थी, तब मैंने बेशतरफ बदला। बोली, अम्मी मुझे पागल मर्द से शादी करने से बेहतर लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है अगर मेरी शादी हो जाएगी तो वो मुझे मार देगा, फिर मैंने पैसे का क्या करना है। अम्मी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें अपने हक़ में कायल कर चुकी हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई और अवैस को फ़ोन मिलाया और कहा, अम्मी मेरी शादी करवा देना चाहती हैं तो मेरा रिश्ता जल्दी से ले आओ। कहने लगा, अभी मैं तुमसे शादी कैसे करूँ? तुम भी तो समझा करो, मेरी मजबूरियाँ हैं। अपनी अम्मी को समझा बुझाओ। अवैस की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने फ़ोन काट दिया। अब मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि अवैस मुझसे अभी इस कदर मोहब्बत में करता है और मुझे खोने से डरे। उसको मुझसे प्यार है, लेकिन अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं भी उससे बात कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अवैस को अपने प्यार में पागल करना चाहती थी। अब मेरी सोच बार बार घोड़े की दवाई पर जा रही थी। मैंने सोचा अगर किसी तरह मैं अरबी घोड़े की दवा अवैस को खिलाने में कामयाब हो गई तो वो मेरी खातिर मार मिटने को भी तैयार हो जाएगा। ये 2 मिनट में असर करती है, इसका सबूत तो मुझे आज अम्मी की बातों से भी मिल गया था। उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो कोई टोटका करती थी जिससे अबू उनके लिए दीवाने हुए जा रहे थे। उन्होंने बेशक मुझे वो टोटका नहीं बताया था, मगर मुझे तो इल्म था कि वह घोड़े की दवा की बात कर रही थी। अगले दिन अम्मी काम पर जाने लगी तो बोली, सानिया तुम्हारी ज़िद के आगे मैं हार गई हूँ। आज मैं सेठ अकबर को शादी के लिए इनकार कर दूँगी। तुमने अमीर होने का बहुत सुनहरी मौका हाथ से गंवा लिया। इतना कहकर अम्मी बाहर चली गई थी। मैंने सोचा आज मैं अवैस को घर बुला लेती हूँ और उसे दवाई चाय में घोल कर पिला दूँगी, फिर वो मेरी हर बात मानेगा और मेरे लिए रिश्ता ले आएगा। मैं अवैस की मोहब्बत में बिल्कुल दीवानी हो चुकी थी। वो जैसे कहता मैं वैसा करती थी। मैं चाहती थी कि दिन से रात ना चढ़े और मैं अवैस की हो जाऊं, मगर वो शादी से कतरा रहा था। खैर, मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और अवैस को कॉल करके घर आने का कहा था। वो मेरी बात सुनकर बेतहाशा खुश हो गया था। कहने लगा, उस दिन मैं इंतज़ार में सदियों से गुजर रहा था। तुम्हें पहले भी 100 बार कह चुका हूँ कि फ़ोन पर बात करके मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। मैं तुम्हारे रूबरू बैठकर अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर तो मैं फूले नहीं समा रही थी। फ़ोन बंद करके मैं जल्दी से उठी और अम्मी के कमरे में चली गई थी। मैंने अम्मी के ट्रंक को खोला और घोड़ी की दीवार निकाल ली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब करना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद तक जाऊंगी। थोड़ी ही देर तक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने अवैस खड़ा था। उसके चेहरे खुशी नज़र आ रही थी। मैंने जल्दी से सड़क का जायज़ा लिया कि कोई अवैस को मेरे घर में दाखिल होते हुए देख ना ले, और फिर मुझे सड़क खाली पाकर मैंने अवैस का हाथ पकड़कर उसे घर में खींच लिया। वह शौक हो रहा था। कहने लगा, शादी के बाद जब मैं घर आया करूँगा तो तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगी? मैं बोली, अवैस मुझे तो लगता है हमारी शादी होगी ही नहीं। अम्मी मेरे लिए रिश्ते देखती फिर रही हैं। तुम मेरे लिए रिश्ता लेकर आओ ताकि हमारी शादी हो जाए। मगर अवैस ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, आज के दिन मैं तुम्हारे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगा। आज मैं फ़कत अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा। मैं बोली, ठीक है, तुम सुकून से मुझे अपनी बातें बताना, मगर मैं पहले तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। तो अवैस कहने लगा, नहीं, कोई चाय वाय नहीं पीनी, तुम किसी किस्म की तकल्लुफ़ में मत पड़ो। अवैस की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने उसे जिस मकसद के लिए बुलाया था वो अभी तक अधूरा था, वो पूरा नहीं हुआ था। तब वही दोबारा घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अब तो मेरी जान पर बन गई थी। मैं बेतहाशा डर गई थी कि इस वक्त घर में कौन आ गया है। अगर कोई अवैस को मेरे घर देख लेता तो बहुत बदनामी हो जाना थी। मैं तो खौफ से कांपने लगी थी। तब अवैस ने मुझे सहारा दिया। वो बोला, मैं कमरे में जाकर छुप जाता हूँ, तुम्हें जाकर दरवाज़ा खोल दो, किसी को भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं होगा। मैं घबराती थी, मगर फिर अवैस की बात मान ली। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मी खड़ी थी और उनके साथ सेठ अकबर भी खड़ा था। ये 65 साला मर्द मैंने पहले कभी बार देख चुकी थी। जब मैं अम्मी के साथ बंगले में जाती थी तो सेठ पर मेरी नज़र पड़ जाती थी। मैंने उनको अंदर आने का रास्ता दिया। अम्मी बोली, सेठ के लिए चाय बना लाओ। मैं चाय बनाने किचन में गई, मगर मेरी जान तो अवैस में ही अटकी हुई थी कि कहीं अम्मी को इल्म ना हो जाए कि वह यहाँ मौजूद है। अम्मी मेरे पीछे ही किचन में आ गई थी। वो कहने लगी, चाय ना बनाओ, सेठ वापस जा रहे हैं, मैं उसे दरवाजे तक छोड़ कर आती हूँ। अम्मी किचन से बाहर निकली तो मैंने घोड़े वाली दवा छुपा कर रख दी। मैं दबे कदमों कमरे में गई जहाँ अवैस छुपा हुआ था।
मगर अब वो कमरा खाली था। न जाने वो कैसे नज़र बचाकर फरार होने में कामयाब हो गया था। अम्मी अब वापस आ चुकी थी। अम्मी कहने लगी, सेठ अकबर कैसा लगा तुझे? मैं बोली, जैसे अमीर लोग होते हैं वैसा ही मगरूर सा था। अम्मी बोली, इसने तुझे एक ही नज़र में पसंद कर लिया है और वह तुझसे शादी करना चाहता है। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिमाग भंग से उड़ गया। मैं बोली, आपको क्या हो गया है? कभी आप सेठ के दीवाने बेटे का रिश्ता मेरे लिए ले आती हैं तो कभी 65 साल बुढ़े का। आपको मेरी उम्र याद है ना? मैं फ़कत 19 बरस की हूँ और इस बुढ़े के साथ बच्चों की माँ लगूंगी क्या? अम्मी कहने लगी, पागल मत बनो, अब ये रिश्ता ना गंवा देना हाथ से। तुम्हें क्या लगता है कि वह उम्र भर तुम्हारे सर पर सवार रहेगा? 60 साल के बाद तो वैसे भी किसकी उम्र का कोई एतबार नहीं होता। आज है कल नहीं होगा, क्या पता शादी की रात ही मर जाए और जायदाद तुम्हारी हो जाए। फिर तुम्हारी शादी तुम्हारे मनपसंद शख्स से करवा दूंगी। मैं अम्मी की बातें सुनकर बिल्कुल भी मुतासर ना हुई थी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं अपने कमरे में गई तो देखा अवैस की कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन अटेंड किया तो वो बोला, सानिया तुम्हें इल्म है, आज तुम्हारे घर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आई थी। सेठ अकबर कितना बड़ा नाम है, तुम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। अगर मुझे आज सेठ की कमरे में मुलाजमत मिल जाए तो कल मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। उसके साथ जो काम करता है उसकी नस्लें संवर जाती हैं। आज जब मैं तुम्हारे कमरे में छुपा हुआ था तब मैंने तुम्हारी अम्मी और सेठ की बातें सुन ली। मुझे इल्म हो गया है वह तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम्हारे घर आया था। तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगी। तुम सेठ अकबर से शादी करके उसकी शादी की जायदाद हथिया लो, उसके बाद वो मर जाएगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हमारे पास दुनिया की हर चीज़ होगी, दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि खुशी भी। मैं बोली, अवैस तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम अपनी मोहब्बत को खुद इग्नोर कर रहे हो। तो अवैस बोला, मैं तुम्हें गंवा नहीं रहा बल्कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का बहुत अच्छा सबक पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी सूरत तुम्हें यह सुनहरी मौका गंवाने नहीं दूंगा। मैं बोली, अवैस मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे मर्द को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अवैस बोला कि चलो ठीक है, तुम ना करो शादी सेठ से, आज के बाद मैं भी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। और हाँ, मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। इतना कहकर अवैस ने फ़ोन काट दिया था। मैं उस वक्त अजियत की हद तक पहुँच गई थी, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था और आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत में मजबूर होकर अवैस की बात मानकर सेठ अकबर के साथ शादी कर ली थी। मुझे तो ये लगा था कि वो मुझे हासिल करने खुशी फूले नहीं समाएगा, मगर उसके चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट भी मुझे नज़र ना आई थी। हमारी रुखसती हुई और मैं उस बंगले की मालकिन बन गई जिसमें मेरी अम्मा काम करती थी। मैं जहाज़ी साइज बेड पर बैठी, मेरी अम्मा काम करती थी। मैं जहाज़ी साइज शोहर का इंतज़ार कर रही थी। वो बूढ़ा शोहर चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, सानिया मैं जानता हूँ तुम उम्र में बहुत छोटी हो, हम दोनों का यह रिश्ता बिल्कुल नामुनासिब सा लगता है। तुम अभी बच्ची हो, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, लेकिन देखो इस सब के बावजूद भी तुम आज मेरी बीवी बनकर मेरे सामने बैठी हो। यह सब पैसे से मुमकिन हुआ है। अगर मेरे पास पैसा ना होता तो क्या तुम्हारा रिश्ता मुझे मिल जाता? हरगिज़ नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। उसने मेरे सामने एक कागज़ कर दिया। मैं बोली, ये क्या है? वो कहने लगा, जब तक हम दोनों के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं होगा मेरी जायदाद तुम्हें नहीं मिलेगी। जब तुम मुझे अपनी जानब मायल करने में कामयाब हो गई तो मैं इस कागज़ पर दस्तखत कर दूंगा, तुम्हें मेरी जायदाद मिल जाएगी। अब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। सेठ अकबर मुझे हैरत में मुब्तला छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया था। मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और अवैस को नंबर मिलाया। मेरी कॉल उठाकर वो मुझे डांटने लगा और बोला, पागल लड़की, तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? ये वक्त तुम्हें अपने शोहर को देना चाहिए, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। मैं बोली, अवैस बात तो सुनो, मेरा शोहर दूसरे कमरे में चला गया है। फिर मैंने सेठ अकबर की सारी बातें उसे बता दी। अवैस कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, वो बूढ़ा ज़्यादा देर तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। तुम हो ही इतनी हसीन, बस तुम सेठ अकबर के साथ अच्छा सलूक रखना, वह खुद ही मोम हो जाएगा। अगली सुबह जब अम्मी नाश्ता लेकर आई तो मैंने अपने शौहर की शर्त उन्हें भी बता दी। अम्मी हंस दी और बोली, बेटी ये अमीर पड़े बहुत तेज़ होते हैं, वो अपनी उम्र भर की कमाई इतनी आसानी से तो तुम्हारे हवाले नहीं करेगा, ना वह तुम्हें अभी थोड़ा तरसाएगा, फिर कहीं जाकर हर चीज़ की मालकिन तुम्हें बना देगा। मेरी शादी को एक हफ़्ता गुजर चुका था मगर वो तो मेरे पास तक ना आया, मुझसे बात भी नहीं करता था। मैं सारी रिपोर्ट अवैस को देती रहती, वह भी मुझे नित नए तरीके बताता रहता जिससे मैं अपने शौहर को अपनी जान मायल कर सकती। मगर न जाने उस बूढ़े को मुझसे किस किस्म की कोई दिलचस्पी क्यों ना थी। एक दिन अवैस कहने लगा, मुझे हैरत होती है कि एक बूढ़ा तुमसे काबू में नहीं हो रहा, शायद तुम में ही कुछ नहीं, तुम पागल हो।
मैं जो तुमसे मोहब्बत कर बैठा, तुम तो कोई बहुत ही गई गुजरी लड़की हो। मुझे लगता है मुझे भी अपनी पसंद पर नज़रसानी करनी चाहिए। अवैस की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैंने भी इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था। मैंने भी सोच लिया था कि अपने शोर को हासिल करके रहूँगी। तब मेरे जहन में घोड़े की दवा का टोटका आया। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अवैस पर तो मैं ये टोटका आजमा ना सकी थी, क्योंकि ऐन मौके पर अम्मी आ गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे ये क्या करना है। सेठ अकबर से इजाज़त लेकर मैं अम्मी के घर चली गई। अम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने अम्मी से कहा, मैं आपके हाथ की चाय पीना चाहती हूँ। अम्मी ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अम्मी के जाते ही मैंने उनका ट्रंक खोला। वह दवाई मैंने उनके ट्रक में छुपाई हुई थी। मैंने जल्दी से वह दवाई निकालकर अपने पर्स में डाल ली और फिर उनके पीछे ही किचन में चली गई। अम्मी के हाथ की चाय पीकर मैं अपने घर वापस आई थी। आज मैं बड़ी नर्वस थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे सब कुछ करना भी चाहिए कि नहीं। मुझे बुड्ढे को घोड़े की दवा देनी चाहिए या नहीं। फिर मैंने सोचा, अगर मुझे सेठ अकर की भी जायदाद ना मिली तो फिर ये शादी करने का क्या मकसद। और अब तो अवैस भी मुझसे दूर होने लगा था। इस बात का तो मुझे इल्म था कि जैसे अवैस को खबर मिलती है कि मैं करोड़पति बन गई हूँ तो फिर वो मेरा हो जाए। अब मुझे इस बात की भी परेशानी थी कि न जाने ये दवा सेठ अकबर पर असर भी करेगी या नहीं। मैं शाम की चाय में वो दवा मिक्स करके सेठ के पास ले गई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। उसने चाय तो पी ली। कहने लगा, आज तो तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है। आज तुम बन ठन कर रहना, मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा। ये बात सुनकर मैं मुस्कुराकर अपने कमरे में आ गई। यह दवा सेठ अकबर पर असर कर चुकी थी। मुझे इल्म हो गया था वो मेरे इशारों पर नाचने वाला है। मैं खुश भी थी मगर दिल उदास था कि मैंने अपनी ज़िंदगी को इस रुख में नहीं सोचा था। मैं तो ये दवा अवैस को मोहब्बत हासिल करने के लिए आजमाना चाहती थी, मगर अब मुझे सेठ अकबर की तवज्जो हासिल करने के लिए यह सब कुछ करना पड़ा था। रात 8 बजे मुझे सेठ अकबर कमरे में दाखिल होता हुआ उसके चेहरे पर बड़ी परेशानी सी थी। वो कहने लगा, आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत आजमा लिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं भागोगी। तुमने मेरी बेरुखी को भी बर्दाश्त किया। अब मुझे इस बात का इल्म हो गया है कि मेरी जायदाद की हकदार तुम हो। सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर तुम मेरे साथ वादा करो, मेरे मरने के बाद भी तुम मेरे बेटे को छोड़कर नहीं जाओगी। तुम उसका ख्याल रखोगी। मेरा बेटा इस दुनिया की चालाकियों से नावाकिफ़ है। मुझे डर है लोग उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे।